ناظرین، میں ہوں بسملہ آفتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل۔ آئیے جو سلسلہ چل رہا تھا اسی میں آگے بات کریں گے، اور یہ کوشچن جتنے بھی ہیں بہت آسان سے سوال آج بھی ہونے والے ہیں۔ 2-3 پریکٹس سیٹ ایسے آ چکے ہیں جو بہت آسان تھے۔ یہ بھی 50 کوشچن بہت آسان کوشچن ہوں گے، ان میں بھی مجھے امید ہے کسی کا کوئی کوشچن غلط نہیں ہونا چاہیے۔ جن بچوں کے 50 میں 49 48 صحیح نکل رہے ہیں بہت اچھی پوزیشن میں ہیں، اور تھوڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ کوشش کیجئے 50 کے 50 بھی کوشچن صحیح ہوں۔ آج کا پہلا سوال ہے کہ شیر الہند کے مصنف کون ہے؟ یہ کتاب ہے جس کا آپ کو جواب دینا ہے کہ شیر الہند جو ہے یہ کتاب کے مصنف کون ہیں۔ تو امید کرتا ہوں سبھی کا آنسر صحیح ہونا چاہیے۔ چاروں آپشن دیکھ لیجئے، اس لیے میں تھوڑا سا پوز لے لیتا ہوں۔ دوسری چیز کیا ہے کہ اس میں سے یہ شبلی نعمانی اور الطاف حسین حالی، یہ دونوں جو ہیں سر سید کے رفقا میں گنے جاتے ہیں، یہ بات ذہن میں ضرور رکھیے گا۔ اور شبلی اور سید سلیمان ندوی جو ہیں ان کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ تو یہ شاگرد اور استاد کا رشتہ ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اس میں آنسر آپ کا صحیح ہوگا عبدالسلام ندوی۔ تو عبدالسلام ندوی کی کتاب ہے شیر الہند، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ اب یہ دیکھیے ریپیٹڈ سوال ہے، 3 پیپر کل سے میں آپ کے سامنے پرسوں سے رکھ چکا ہوں، ان تینوں میں یہ سوال ضرور آیا ہے۔ سوال کیا ہے کہ باغ و بہار کس کی صنف ہے؟ کل والے پیپر میں یہ بھی پوچھا تھا کس کی ہے، اور یہ بھی پوچھا تھا کہ کس سن میں یہ شائع ہوئی ہے۔ 1802 میں ہوئی ہے فورٹ ولیم کالج میں، یہ بات ہم پہلے ہی آپ کو بتا چکے ہیں۔ تو اس میں آپ کا آنسر کیا صحیح ہوگا؟ میر امن دہلوی کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے۔ باغ و بہار انہی کی نوترج مرصع کا ترجمہ ہے، اور نوترج مرصع جو ہے وہ چہار درویش کا ترجمہ ہے۔ اور میر امن جو ہے ان کی وفات یاد رکھیے گا، بہت امپورٹنٹ ہے، 1808 میں ہوئی ہے۔ اگلا سوال ہے امراؤ جان ادا کس کی تصنیف ہے؟ تو امراؤ جان ادا ان میں سے کس کی تصنیف ہے، یہ آپ کو جواب دینا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ بھی آپ کے لیے آنسر آسان سا ہوگا۔ یاد رکھیے گا کہ امراؤ جان ادا اور ساتھ ہی ساتھ میں فردوس وری اور سر سید احمد خان، ان تینوں لوگوں، سر سید کی وفات 1899 میں ہے، 99 میں ہے، فردوس وری 1899، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ امراؤ جان ادا بھی 1899 میں آیا ہے۔ یہ 3 چیزیں آپ کو ہر حال میں یاد رکھنے ہیں۔ کس کا ہے؟ تو یہ ہے مرزا ہادی رسوا کا۔ اور دوسری چیز یاد رکھیے کہ اس ناول میں 3 شہروں کا ذکر ہے، خاص طور سے ان کا نام یاد رکھیے، لکھنؤ، کانپور۔ 4 شہروں کا ذکر ہے لیکن 3 کا اچھے سے یاد رکھیے، لکھنؤ، کانپور اور فیض آباد۔ اس میں اگلا سوال ہے کہ افسانہ ہے کفن کا مصنف کون ہے؟ ترقی پسند کا بہت ہی اہم افسانہ مانا جاتا ہے کفن۔ بدھیا ہے، گھیسو ہے، مادھو ہے، یہ سارے کردار اسی کے ہیں، اس افسانے کے۔ 1936 میں لکھا گیا یہ افسانہ، اور عموماً یہ جو ہے آخری افسانہ مانا جاتا ہے منشی پریم چند کا۔ تو آپ کا آنسر ہوگا منشی پریم چند، 3rd آنسر آپ کا صحیح ہوگا۔ چوتھی کا جوڑا، چوتھی کا جوڑا افسانہ کس کا ہے؟ تو آپ کا آنسر ان میں صحیح ہونا چاہیے۔ چوتھی کا جوڑا دیکھیے علی عباس حسینی کی جو ہیں تصانیفیں اچھے سے آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ میلا گومنی اور خاص طور سے ان کا نور و نار، یہ 2 تصنیفیں ہیں بہت ہی جو اہم ہیں، اور اردو ناول کی تاریخ جو ہے وہ انہی کی لکھی ہوئی کتاب ہے ناول پہ۔ عصمت چغتائی کا یہ ناول ہے چوتھی کا جوڑا، یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ راحت اس کا بہت ہی اہم کردار ہے۔ سوال ہے غبار خاطر کا تعلق کس سے ہے؟ کوئی بھی غلطی ہوا کرے تو ضرور بتائیے کیجئے، اور جو کوشچن چاہے ایک بھی غلط ہو کوشچن ضرور نوٹ کیا کیجئے، اور پرانے ویڈیوز بار بار چینل کے دیکھتے رہیے۔ یہ 151 نمبر کی پریکٹس سیٹ کی ویڈیو ہونے والی ہے۔ مائی کوشچن کی جو سیریز ہے اس کو ضرور دیکھیے، میں اس کو ہر بار کہتا ہوں، اس کو ضرور دیکھیے اگر آپ کو ایگزام نکالنا ہے، کوئی بھی ایگزام ہو اس کے لیے بہت ہی اہم وہ سیریز ہے۔ تو اس میں غبار خاطر کا تعلق دیکھیے، غبار خاطر کو کل بھی پوچھا تھا اس کا تعلق، تو اس کا تعلق کیا ہے؟ خطوط، خطوط کا مجموعہ ہے، کل ملا کر کے 24 اس میں خط شامل ہیں۔ اگلا سوال ہے اندر سبھا، اندر سبھا کس عہد میں لکھی گئی؟ کیا ہے کہ یہ منظوم اردو کا پہلا ڈرامہ مانا جاتا ہے، منظوم اردو کا پہلا ڈرامہ مانا جاتا ہے اندر سبھا۔ امانت لکھنوی کا لکھا ہوا ہے 1824 میں۔ یہ کس ہے؟ تو آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا، نہیں سوری یہاں پہ غلط میں ہے، 1824 میں تو افسانہ عجائب آئی ہے،
लेकिन ये जो बात है इंद्र सभा ये 1852-54 में है, लिखा 52-54 में शाया रजब अली बेग सुरूर के कहने पर। तो इसमें आंसर आपका क्या सही होगा? नवाब वाजिद अली जो शाह हैं उनके अहद में इस ड्रामा को लिखा गया है, मंजूम ड्रामा है। अगला सवाल है कि एहतशाम हुसैन के सफ़रनामे का नाम आपको बताना है। बहुत ही अहम सफ़रनामा है और ये सफ़रनामा है साहिल और समंदर। याद रखिएगा, ये मुंबई से एहतशाम ने सफ़र किया है। ये पूछा जा सकता है किस साहिल से इन्होंने कहाँ तक का सफ़र किया है, तो इसमें मुंबई से और अमेरिका का सफ़र किया है, ये याद रखने वाली बात है। आल अहमद सुरूर की तनक़ीदी नौइयत क्या है, यानी वो किस दबिस्तानी तनक़ीद के नक्काद माने जाते हैं? क्या है? जमालियाती, तासुराती, इश्तराकी और साथ साथ में साइंटिफिक। तो याद रखिए ये जो है वो साइंटिफिक माने जाते हैं, आपको जहन में रहना चाहिए। आपका आंसर सही होगा 4। अगला सवाल है नाम देव माली लिखा हुआ खाका है, चंद हम असर नाम का एक मजमुआ है जो 1937 में आया था। खाकों का मजमुआ है किसका है? मौलवी अब्दुल हक का। तो उसी का ये खाका है, ये याद रखिएगा। यहाँ से आपका आंसर सही होगा 3rd। और इसमें जो शेर इस्तेमाल हुआ है वो हाली का है। आगे सवाल है हुज्जतुल इस्लाम किसका किरदार है? हुज्जतुल इस्लाम इनमें से किसका किरदार है? पहली बात तो ये याद रखिए तसानीफ़ें किसकी हैं। अच्छा, मैं इनकी डिटेल इसलिए नहीं बताता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये 50 क्वेश्चन की वीडियो 20 मिनट में मैं पूरी करने की कोशिश करता रहता हूँ। तो इसमें आपका इब्नुल वक्त ये नावल है, फ़िरदौस वरी ये नावल है, शिकस्त ये भी नावल, ये चारों नावल हैं। किसके किसके हैं तो ये भी याद रखिए। ये नज़ीर अहमद, डिप्टी नज़ीर अहमद का है। फ़िरदौस वरी जो है अब्दुल हलीम शरर का है। और टेढ़ी लकीर ये इसमें चुग़ताई का है। शिकस्त ये किसका है तो कृष्ण चंद्र का। तो अब इसमें आंसर सही होगा इब्नुल वक्त। ये किरदार हुज्जतुल इस्लाम का जो है ये इब्नुल वक्त का है, याद रखिएगा। किसका चरवा है? इब्नुल वक्त। तो सर सैयद अहमद ख़ान का है, ये भी याद रखने वाली बात है। सवाल है तहज़ीबुल अखलाक की इशाअत किस शहर में हुई? इसकी शुरुआत जो है तहज़ीबुल अखलाक की इशाअत कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा, इसको जहन में रखना है, बनारस। ये बनारस हुई है। एक बार मैं गलती से अलीगढ़ बोल गया, अलीगढ़ नहीं है, बनारस है। अगला सवाल है कि गालिब किस शहर में पैदा हुए? इनकी पैदाइश बतानी है, किस शहर में हुई है। ये पैदा हुए आगरा में, इंतकाल हुआ दिल्ली में। अच्छा, कब पैदा हुए हैं तो 1797 में हुए, ये भी याद रखने वाली बात है। इंतकाल 1869 दिल्ली में हुआ है। आब हयात का जो है मौजू क्या है? देखिए, आब हयात पे कल भी सवाल था और आज भी फिर सवाल बना हुआ है। 3 साल के प्रैक्टिस सेट जो हैं वो हर बार मैं लेकर के आ रहा, और बहुत आसान है और साथ ही साथ में सभी में कॉमन सवाल बन रहे हैं। 30-30, 40-40 सवाल कॉमन हो जाते हैं। बहरहाल इतने कॉमन अब नहीं होंगे, लेकिन फिर भी पेपर आसान होगा अगर आप तैयारी करते रहेंगे। तो आब हयात का मौजू क्या है? तो ये किस तरह की किताब है? ये तारीख़ी किताब है, तारीख़ इसका मौजू है। चूँकि ये उर्दू शायरी और शायरों की तारीख़ है। शुरू में इसको तज़करा भी माना जाता था, लेकिन ये तज़करा नहीं है, इसको समझ लीजिएगा। माह तलात का किरदार किस दास्तान का है? ये आपको बताना है। बहुत आसान सा सवाल है। रजब अली बेग सुरूर की लिखी हुई किताब है फसाना अजाइब, उसी का ये किरदार है। और फसाना अजाइब पर कल भी 2 सवाल आए थे कल वाले प्रैक्टिस सेट में। आज फिर देखिए ये आ चुका है। इसके बाद में क्या है? आदमी नामा किस शायर की नज़्म है? ये देखिए यहाँ पे नज़्म थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो आदमी नामा नज़्म किसकी है? आसान है, याद रहेगा आपको, नज़ीर अकबर आबादी की। और इसकी हैयत जो है वो मुसद्दस की है। सवाल है उर्दू ज़बान की तारीख़ पर महमूद शिरानी की किताब का नाम बताना है। तो महमूद जो शिरानी हैं उनकी किताब का नाम बताना है, क्या होगा? तो महमूद शिरानी के पर भी देखो ऐसा कोई पेपर नहीं जिस पे हम बात नहीं कर रहे। तनक़ीद आब हयात और तनक़ीद शेरुल अज़्म ये दोनों महमूद शिरानी की हैं। कम्युनिटी पोस्ट में जब हम सवाल डालते हैं तो बच्चे गलत कर रहे कमेंट करके कि नहीं आब हयात को डाला था, आब हयात तनक़ीद आब हयात, तो बच्चे मोहम्मद हुसैन आज़ाद लिख रहे हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब सिर्फ आब हयात है, तनक़ीद आब हयात नहीं है। इसी तरह से पंजाब में उर्दू पैदा हुई, ये नज़रिया भी महमूद शिरानी का और ये किताब भी इन्हीं की है।
महमूद शिरानी की और डिटेल मैं आपके सामने रख चुका हूँ, उसको ज़रूर देखिएगा पूरी वीडियो मुकम्मल। तनकी आगे देखो, तक़सीम हिंद के मौजू पर लिखे हुए नावल का नाम बताना है। तो तक़सीम हिंद पे जो नावल हैं पूछे जाते हैं। देखिए ये भी सवाल पूछा गया, इसीलिए मैंने ऑडियो बुक की जो पेश की थी उसमें इस पे मैं बात कर चुका हूँ कि हिंदुस्तान में तनकीद वो सॉरी तक़सीम हिंदुस्तान पे किसके नावल हैं, और उन नावल निगार के नाम पेश कर चुका हूँ, उनको देखिएगा। उसमें 20-25 ऐसे नावल हैं और वो जहन में रहने चाहिए सारे के सारे। तो आंगन इसमें नावल होगा खदीजा मस्तूर का, याद रखिए ये है तक़सीम हिंद पे लिखा हुआ। ऑडियो बुक को क्लिक कीजिए, उसमें भी एक प्ले लिस्ट बनी हुई है जिसमें 5-6 वीडियो टॉपिक वाइज आ चुके हैं, उन्हें सुनिएगा ईयरफोन लगा के। तो अगला सवाल है 19 का, इसमें बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार का शायर आपको बताना है, ताल्लुक़ किसका था। तो बहादुर शाह ज़फ़र का जो ताल्लुक़ है इनमें से किसमें है, देखिए आपका आंसर सही होगा ज़ौक़, क्यों, बाकी ये सभी जो हैं वो नहीं हैं। ये दो तो बहुत पहले के हैं, इनसे बहादुर शाह ज़फ़र ही नहीं पैदा हुए थे। बहादुर शाह ज़फ़र पैदा हुए हैं 1771 के गालिबन आसपास में। अगला सवाल है, किस शायर का कलाम अपने अहद का मरसिया है। तो दिल और दिल्ली का मरसिया उनका कलाम कहा जाता है। तो अपने अहद का मरसिया जो है वो दिल्ली के किस शायर का, इनमें से दो। तो मीर तकी मीर की शायरी जो है वो दर्द भरी शायरी मानी जाती है, और इसीलिए दर्द के बयान को ही मरसिया में भी बयान किया जाता है। तो वही वजह से इनके शायरी को मरसिया कहा गया। आगे झेल किताबों में से कौन सी खुतूत का मजमुआ नहीं है। अब ये बताना है, ये जो 4 हैं ऑप्शन, इनमें से खुतूत का मजमुआ नहीं है। देख लीजिएगा। तो अमूमन देखिए उर्दू मोहल्ला जो है ये खुतूत का मजमुआ है, किसका है, गालिब का। गालिब के खुतूत का मजमुआ है, और ये रिसाला भी है हसरत मोहानी का। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत गौर करने की ज़रूरत है। अगर आपका मताला थोड़ा सा भी अगर आपने दिमाग को कंफ्यूज किया तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। उर्दू मोहल्ला जो है वो खुतूत का मजमुआ है, किसका है, गालिब का, ये भी याद रखिएगा। और रिसाला भी इस नाम से है जो अलीगढ़ से निकला है, हसरत मोहानी का। तो ये मजमुआ है, ठीक। ज़ेर लफ़ खुतूत का ही मजमुआ है। और ये जो है सफ़िया अख्तर का लिखा, जावेद अख्तर की जो माँ हैं जानिसार अख्तर की बेगम, उन्होंने अलीगढ़ से अपने हस्बैंड ने इनको जानिसार अख्तर को लिखे थे बॉम्बे के लिए। इसके बाद में गुबार ख़ातिर तो आपको मालूम ही है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है। ये लैला के खुतूत याद रखिए, ये काजी अब्दुल गफ़ार का लिखा हुआ नावल है, ये आपको याद रखना। ये नावल है लैला के खुतूत, मजनू की डायरी, ये दोनों इन्हीं के हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल है फोर्ट विलियम कॉलेज किस शहर में कायम हुआ। देखिए ये कल पूछा गया था, ये किस सन में कायम हुआ, आज ये पूछा गया किस शहर में। तो कोलकाता में हुआ है, ये बात याद रखिएगा। और फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम 1800 में हुआ था, 1854 में डलहौजी ने इसको बंद कर दिया था। आगे है, दक्कन में लिखी गई मशहूर मसनवी कौन सा। ये देखिए थोड़ा सा सवाल कन्फ्यूज़ में है। ये देखो शुमाली हिंद की दोनों हैं और ये दोनों दक्कन की हैं। तो इनमें से अब आपका आंसर क्या सही होगा। दक्कन में मशहूर किताब, तो मशहूर जो सबसे ज़्यादा इनमें है, इन दोनों में, तो वो है इब्ने निशाती की फूलवन। आप, और इसी का आंसर फूलवन ही सही होगा। हालांकि गुलशन इश्क भी दक्कन की ही है, नुसरती की, लेकिन वो इतनी मशहूर नहीं है। बहरहाल याद रखिएगा, और पहले भी लिखी गई फूलवन। ताजुल मलूक जो है इसका किरदार किस मसनबी का है। ताजुल मलूक जो है ज़ैनुल मलूक, ताजुल मलूक, ये बाप बेटे होते हैं। और किसके हैं किरदार, ये गुलजार नसीम के हैं। ये याद रखने वाली है, गुलजार नसीम। अगला है, मुसद्दस के बंद कितने। देखिए ये बात भी कल मैं कर चुका कि मुसद्दस में जो है कितने मिसरे होते हैं। मुसद्दस के बंद में तो 6 मिसरे होते हैं, ये खूब पूछा जा चुका है। बिल्कुल सेम ऐसे ही सवाल था कल के पेपर में, और आज में भी यही है। लेकिन इसमें शेर अब ज़रूर याद रखिएगा, इसमें शेर जो हैं वो 3 हैं। मुसद्दस में शेर 3, मिसरे 6। दारुल मुसन्निफ़ीन का बानी, तो कल भी ये पूछा गया था, दारुल मुसन्निफ़ीन आज़मगढ़ का बानी, ये पूरा सवाल था। आज सिर्फ ये पूछा गया दारुल मुसन्निफ़ीन का बानी, तो वही है शिबली नोमानी है। 1914 में ये कायम किया था आज़मगढ़ में। अवधे हिंदी का मुसन्निफ़ का नाम बताना है। तो अवधे हिंदी जो है वो क्या है, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। गालिब के पहले खुतूत का उर्दू खुतूत का मजमुआ है,
ये आपको याद रखना है। मिर्ज़ा गालिब आपका फर्स्ट आंसर सही होगा। असबाब बगावत का मौजू क्या है? तो असबाब बगावत का मौजू आपको याद रखना है। मतलब जो है ये सही से सवाल का जवाब देना है। तो इसमें आपका मौजू क्या होगा? असबाब बगावत। जैसे आसारुल सनादीद का अगर पूछा जाए, उसका तारीख़ी इमारतें और दहली का ही तारीख़ लिखी गई है। लेकिन असबाब बगावत जो है ये तारीख़ी नहीं है, ये सियासत का है। तो जो सियासत अंग्रेज़ कर रहे थे और मुसलमानों को क्या करना चाहिए, उसका रद्द-ए-अमल, इस तरह की बातें इसमें बगावत में की गई हैं। दूसरी बात, अगला सवाल है कि तकाबिली तनकीद की इब्तदा। ये थोड़ा सा कल नहीं आया था लेकिन आज आ गया है। कल ये पूछा था शेरुल अज़्म किसकी किताब है, तो किसकी थी? शिबली नोमानी की। और आज है तकाबिली तनकीद का मताला जो है वो किताब कौन सी है? तो तकाबिली तनकीद की किताब जो मानी जाती है वो मवाज़ना अनीस व दबीर है। तकाबिल का मतलब ही होता है एनालिसिस ऐसा करना जिसमें तुलनात्मक अध्ययन हो। तो तुलनात्मक अध्ययन को तकाबिली कहते हैं। अगला है अब्दुल कलाम आज़ाद का अखबार है अल हिलाल, कहाँ से शाया हुआ है ये भी आपको याद रखने वाली है। अब्दुल कलाम आज़ाद के अमूमन जो रिसाले हैं वो कोलकाता से निकले हैं, ये याद रखिएगा। मिर्ज़ा गालिब ने कोलकाता का सफ़र किस मकसद से किया था? ये चारों ऑप्शन देखिए और आपको जवाब देना है। अपने दीवान की तिबात और इशाअत के लिए किया था क्या? अंग्रेज़ों से दोस्ती बढ़ाने के लिए? तो ये आप चारों ऑप्शन देखिए, आपका आंसर सही होगा 4। इसमें है अपनी पेंशन का मसला जो है हल करने के लिए इन्होंने किया था। इसके बाद देखिए दूसरा सवाल, अवधि हिंदी का ताल्लुक़ किस सिन्फ से? अभी पूछा था ये किसका है, और अब ये पूछा है कि इसका सिन्फ़ी हैसियत। तो ये खतूत का मजमुआ है, ये याद रखिएगा। कल ये देखिए सवाल आया था मुसद्दस हाली नज़्म के लिए, तो ये किसकी नज़्म है? आज इसका नाम बदल कर मद्दो जज़र इस्लाम करके दे दिया गया है। तो हाली इसमें आंसर आपका सही होगा। बाकी ये जो हैं इनकी भी किताबें याद रहनी चाहिए आपको, बहुत ही अहम है। आगे डिप्टी नज़ीर अहमद का सवानाई खाका लिखा हुआ है, तो किसने खाका लिखा था डिप्टी नज़ीर अहमद का? तो उनके शागिर्द हैं। 1885 में इनकी पैदाइश हुई है, ये याद रखिएगा। किसकी? फ़रहतुल्लाह बेग की। 1947 में इनका इंतकाल हुआ है। इनके शागिर्द हैं डिप्टी नज़ीर अहमद के। और फ़रहतुल्लाह बेग को उर्दू का पहला ही खाका निगार माना जाता है, सवानाई निगार खाका निगार माना जाता है, सवानाई खाका लिखने का। इन्होंने लिखी थी डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़ुबानी। अगला है कलीमुद्दीन अहमद की तसनीफ़ आपको बतानी है। तो गुंज हाय गुफ्तनी, ये आपको याद रखना है, इन्हीं की है, कलीमुद्दीन अहमद की। कुतुब मुश्तरी का मौजू बताना है। देखिए मौजू से सवाल अच्छे खासे पूछ लिए हैं, 3-4 सवाल हो गए हैं। तो कुतुब मुश्तरी जो है लिखी हुई मसनवी है, किसकी है? तो मुल्ला वजही की। कब लिखी है? तो 1609 में। इसमें इसका मौजू क्या है? इश्क है, इश्क पे लिखी हुई दास्तान है, मंजूम दास्तान है, याद रखिएगा। मसनवी तो है लेकिन मसनवी को मंजूम दास्तान भी कहा जाता है, ये याद रखिए। अगला सवाल है दर्जा झेल किताबों में से कौन सी तमसील है? तो तमसीली किताब पूछा गया है, तो सबरस है, आपको खूब मालूम है। और सबरस पे कल भी मैंने डिटेल में बात की थी। 76 किरदार हैं, 1635 में लिखी गई है, 1045 हिजरी अगर पूछा जाता है तो। अगला है ख्वाब बाकी हैं किसकी खुद नविश्त है? सवानाई है। तो ख्वाब बाकी इसमें से किसकी है? देखिए इनमें से सभी की मालूम होना चाहिए। अपनी तलाश में ये इसकी है, बरूद मसूद की है, यादों की बारात जोश की है, बचा हुआ है आल अहमद सुरूर। दरियाए लताफ़त का मौजू क्या है? देखिए दरियाए लताफ़त पर भी मैंने खूब बात की है, 1802 में ये भी लिखी गई है, बागो बहार की तरह शाया हुई। तो इसका जो है कवायद है, उर्दू कवायद जो है वो फ़ारसी कवायद है, शायद उर्दू कवायद लिखी गई है फ़ारसी ज़बान में। अगला सवाल है विसाते रक़्स के मजमुआ कलाम का नाम बताना है। तो बिसाते रक़्स, ये देखो कल भी मैंने बात की थी कि दर्जा झेल में से कौन सा शेरी मजमुआ नहीं है, ये आया था। तो बिसाते रक़्स ऑप्शन में था, गुलेतर भी था, तो इस तरह दस्ते सवा था,
اور اب یاد آیا ہوگا آپ کو، تو اس میں یہ وسعت رقص جو ہے مجموعہ ہے شعری کس کا ہے؟ یہ مخدوم کا ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ اگلا سوال ہے تواضع داستانوں میں کا شمار ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے یہ بھی تھوڑا سا سوال کنفیوز میں آپ کو ڈال سکتا ہے۔ ان میں سے وہ داستان بتانی ہے کہ جو تواضع ہے، تو تواضع کا جب کبھی بھی نام آتا ہے تو آپ کا آنسر صحیح ہوتا ہے فسانہ عجائب، بالکل ہے۔ لیکن رانی قید کی بھی کس چیز کی ترجمہ ہے؟ کسی کا نہیں ہے، یہ بھی تو تواضع ہے، بالکل ہے، بلکہ یہ تو بالکل تواضع ہے، اپنی طرف سے لکھی گئی ہے انشاءاللہ خان علی رانی۔ لیکن فسانہ عجائب پھر بھی تھوڑا بہت کیا کہیں پدماوت ہے یا چندر بدن ہے، ان کو نظر میں رکھ کر کے لکھی گئی ہے، بھلے اس کا ترجمہ نہیں ہے لیکن کہانی کس سے سب وہی بیان کر دیے گئے ہیں۔ پھر بھی آنسر اس کا صحیح فسانہ عجائب کو ہی مانا گیا تھا آیوگ کی طرف سے۔ سوال ہے دہلی کا یادگار مشاعرہ کس کی ہے؟ یہ تصنیف دہلی کا یادگار مشاعرہ، تو یاد رکھیے فرات اللہ بیگ کی ہی لکھی ہوئی ہے۔ اور کہاں منعقد کیا گیا تھا دہلی کا یادگار مشاعرہ جس پہ یہ لکھی گئی تصنیف؟ تو بہادر شاہ جو ظفر تھے ان کے دربار میں۔ اردو کے عناصر خمسہ میں شمار ہوتا ہے۔ اب عناصر خمسہ کون کون ہیں اردو کے؟ تو حالی ہیں، شبلی ہیں، آزاد ہیں، ڈپٹی نذیر احمد ہیں، اور کون ہیں؟ سر سید ہیں۔ تو 5 اردو کے عناصر خمسہ ہیں۔ یہ آپ کا آنسر صحیح ہوگا شبلی۔ اب سوال اگلا ہے کس شاعر کا تعلق دکن سے نہیں ہے؟ اب ان میں بتانا ہے دکن سے نہیں ہے۔ دیکھیے ابن نشاطی کی فول بند دکن میں ہے، ملا وجہی کا دکن میں ہے، قلی قطب شاہ دکن میں ہے۔ حاتم کا تعلق دکن سے ان میں سے نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے تقی میر کا ہم عصر شاعر نہیں ہے، یہ بتانا ہے۔ جلد بازی میں نہ لگا دیجیے آنسر، یہ دیکھیے ان میں سے کون نہیں ہے۔ تو بالکل بہت آسان ہے، میر کے ساتھی ہیں سودا، ان کی ادبی چشمک بھی ہے، مصفی انہی کے ساتھی ہیں، اور آبرو سے انہوں نے اصلاح بھی لی ہے، آرزو خان آرزو سے بھی لی ہے اور آبرو سے بھی لی ہے۔ بہرحال استاد نہیں مانا ہے۔ تو یہاں پہ ذوق جو ہے ذوق سے نہیں ہے، یاد رکھیے ذوق کا جو دور ہے وہ کنٹمپریری میر کا نہیں ہے، وہ پیدا ہوئے ہیں 1789 میں، اور 1810 میں جب تک میر کا انتقال ہو گیا تھا، جب ذوق تھوڑا سا بڑے ہوئے۔ 1857 کی تاریخ کس کے خطوط میں مرتب ہے؟ تو 1857 کی تاریخ کا پورا منظر آپ کو دیکھنا ہے تو خاص طور سے مرزا غالب کے جو خطوط ہیں، خط لکھے ہوئے ہیں، ان کا مطالعہ کرا جائے۔ تو خطوط جو ہے مرزا غالب کے 1857 کی کرانتی جو تھی ریولیوشن، اس کی عکاسی کرتے ہیں۔ سوال ہے خطبات احمدیہ، دیکھو یہ خطبات احمدیہ جو ہے جس پہ بھی کل میں نے بات کی تھی، یہ بھی کتاب پوچھی جاتی ہے خوب۔ تو کتنے خطبوں کا ذکر ہے یہ پھر میں ایک بار کہتا ہوں، بار بار 12 خطبے اس میں دیے گئے ہیں۔ اس کا موضوع کیا ہے؟ تو امید کرتا ہوں سبھی کا آنسر صحیح ہونا چاہیے، یہ سیریت ہوگا، تیسرا نمبر کا آنسر آپ کا صحیح ہوگا۔ دیکھ لیجئے گا اس سوال کو، اگر نہیں معلوم ہے تو نوٹ ضرور کیجئے۔ فورٹ ولیم کالج کا تعلق مصنف، دیکھو فورٹ ولیم کالج سے دوسرا سوال گھوم گیا ہے، ابھی 50 سوال نہیں ہوئے، تو فورٹ ولیم کالج کا مصنف آپ کو بتانا ہے ان میں سے کون ہے۔ آسان سا سوال ہے، حیدر بخش حیدری نے خوب کتابیں لکھی ہیں فورٹ ولیم کالج کے لیے۔ اگلا ہے دارالترجمہ کہاں قائم ہوا؟ دارالترجمہ عثمانیہ حیدرآباد، یہ تو نام ہی آپ کو پورا یاد ہے، تو پھر آنسر آپ کا ہوگا حیدرآباد۔ اور سوال ہے دہلی کا تعلق دہلی کالج کا تعلق کس سے ہے؟ تو یہ جو دیے گئے ہیں ان میں سے دہلی سے تعلق کس کا، دہلی کالج سے کس کا تعلق ہے؟ تو آپ کا آنسر صحیح ہوگا، دہلی کالج کے ہی استاد مانے جاتے ہیں ماسٹر رام چند، اور فوائد النظیر اور حب وطن ان کے دونوں رسالے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ تو اور فورٹ ولیم کالج سے اس میں استاد بننے کا موقع غالب کو بھی ملا تھا، بٹ انہوں نے کسی وجہ سے جوائن نہیں کیا۔ امید کرتا ہوں سارے سوال آپ کو اچھے لگے ہوں گے، کوئی بھی سوال غلط ہوا ہے ضرور بتائیے گا، میں آپ کا بے شکر گزار رہوں گا۔ کوئی غلطی ہوئی ہے بتائیے گا، اور کوئی ڈاؤٹ میں ہے سوال تو بھی بتائیے گا، آپ کا کوئی مشورہ ہے ضرور دیجیے گا۔
पहले के वीडियो ज़रूर देखिए और खूब बार बार देखिए, रिवीजन खूब कीजिए। मैं फिर कहता हूँ कि वीडियो दिन भर में 10-10, 5-5, 20-20 जितने भी देख सकते देखिए। चैनल पे 700 वीडियो पड़े हुए हैं और सारे वीडियो इम्पोर्टेंट हैं। और ख़ास तौर से जो सीरीज़ चलाई है माई रोज़ एक डोज़ के नाम से एक सीरीज़ है, टीजीटी वालों और तमाम एग्ज़ाम वालों के लिए बहुत अहम है। साथ ही साथ में माई क्वेश्चन के जो प्लेलिस्ट है वो भी आप सभी के लिए बहुत अहम है। और बिल्कुल ही टीजीटी के लिए अगर आपको देखना है तो ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही अहम है, जिसमें से 151 नंबर वीडियो हो गई हैं। ठीक है, शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।